Good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, chapter Industrial Revolution. In this chapter, we had discussed the introduction of this chapter, cotton weaving and spinning topic, and also coal and iron topic we have covered. Today, we will try to understand the next topic, steam power. The steam power, the realization that steam could generate a tremendous power was decisive to large scale industrialization. Water as hydraulic power had been the prime source of energy for centuries, but it had been limited to certain area, seasons, and by the speed of flow of the water. Now it was used differently. Steam power provided pressure at high temperature that enabled the use of the broad range of machinery. This meant that steam power was the only source of energy that was reliable and expensive enough to manufacture machineries itself. अब यहाँ पे भाप की शक्ति के बारे में, स्टीम पावर के बारे में हम बात करेंगे. Steam power, as you know that it is clear that steam power has a tremendous power. जब ये पता चल गया कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो ये बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज किया जाने लगा, निर्णायक सिद्ध हुआ. अब यहां पे क्लियर कहता है कि द्रव चालित शक्ति के रूप में जल भी, वाटर भी सदियों से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहा. वाटर एज हाइड्रोलिक पावर हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज. लेकिन इसका उपयोग कुछ खास क्षेत्रों में ही और कुछ खास मौसम में ही हो सकता था. मौसम और जल प्रवाह की गति के अनुसार बहुत ही सीमित रूप में ही हम इसका प्रयोग कर सकते थे. वाटर एनर्जी का, वाटर एज हाइड्रोलिक पावर, वी कैन नॉट यूज द एवरीवेयर एंड एवरी टाइम. देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ द वाटर पावर. So that's why it is very important thing that that time of the people, they invented the different machine which used by the steam and other. कहता है कि but it had been limited to certain areas, seasons and by the speed of flow of the water. जब पानी की रफ्तार कम हो, गति उसकी धीरे हो, तो वहां पे उसका उतना प्रयोग अच्छे से नहीं हो पाता था जितना वो तेज बहने वाले क्षेत्रों में होता था. Now it was used the differently steam power provide pressure at high temperature that enabled the use of a broad range of machinery. This meant that steam power was the only source of energy that was reliable and expensive enough to manufacture machine itself. इसीलिए कई मौसमों में ये भाप की शक्ति का सहारा लिया गया. स्टीम पावर जो थी वो उच्च तापमान पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी. इसका अर्थ ये हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था. भाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम माइनिंग इंडस्ट्री में हुआ. Steam power was first used in mining industry as the demand for coal and metal expanded. Effort to obtain them from ever
deeper mines, intensified. Flooding in mines was serious problem. बाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम इसलिए खान में किया गया क्योंकि जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो इन्हें और अधिक माइनिंग करनी पड़ी, खान की अधिक गहरी खुदाई करनी पड़ी। और अधिक गहरी खुदाई करने के दौरान कभी कभी इन माइंस में, इन खान में पानी भर जाता थी और पानी भर जाने की गंभीर समस्या के कारण बहुत ही हानि होती थी। सो दैट्स वाई द फर्स्ट टाइम यूज इन द माइनिंग इंडस्ट्री। ओके, I hope you are getting understand. My dear, the steam power, that's why use first time mining industry. It is very clearly mentioned in your book as the demand for the coal and metal expand, effort to obtain them from ever deeper mine, intensified flooding in mine was a serious problem. Thomas Savery, 1650 to 1715, built a model steam engine called by the miners' friend in 1698 to drain mines. These engines worked slowly in shallow depth and the boiler burst under too much pressure. भाप की शक्ति का प्रयोग जब शुरू हुआ तो थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड नामक एक स्टीम इंजन का निर्माण किया, एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उसका वाष्पित बॉयलर फट जाता था। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसीलिए इसको माइनर्स फ्रेंड कहा गया क्योंकि ये बता देता था कि प्रेशर बढ़ रहा है। दिस meant the steam power was the only source to energy that was reliable and the inexpensive enough to manufacture machinery itself. That's why I'm saying steam power that's why steam power is क्या था, कम खर्चीला था। थॉमस सेवरी ने इसको प्रूव किया माइनर्स फ्रेंड नामक एक मशीन बना के। These engines, miners' friend engines, worked slowly in the shallow depth and the boiler burst under too much pressure. Another steam engine was built by Thomas Newcomen. This had the major defect of losing energy due to continuous cooling of the condensing cylinder. The steam engine had been used only in coal mines until James Watt developed his machine in 1769. Watt's invention converted the steam engine from being mere pump into prime mover capable of the providing energies to power machine in factories backed by the wealthy manufacturers Matthew Boulton 1728 to 1809। भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन के द्वारा बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि थॉमस न्यूकॉमेन ने जो कंडेंसिंग सिलेंडर बनाया था, ये संघनन बेलन जो थी, ये लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती थी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आई मीन टू से दैट द थॉमस न्यूकॉमेन हु इन्वेंटेड द स्पेशल मशीन in 1712. This had to major defect to losing energy due to continuous cooling the condensing cylinder. The steam engine had been used only in coal mines until James Watt 1736 to 1819 developed his machine in 1769. Watt's invention covered the steam engine from being a mere pump into prime mover capable of the providing energy to power machine in factories backed by the wealthy manufacturers Matthew Boulton. ओके, अब कहता है कि जब थॉमस न्यूकॉमेन की मशीन में जो कंडेंसिंग सिलेंडर थी, उसकी एक बड़ी कमी ये थी कि वो जल्दी ठंडा हो जाती थी, एनर्जी ज़्यादा लेती थी। भाप के इंजन का प्रयोग, स्टीम इंजन का प्रयोग 1769 तक केवल कोयले की खान में ही होता था। जब जेम्स वाट ने इसका प्रयोग
इसका एक भिन्न प्रयोग खोज निकाला। वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में काम करने लगा, जिससे कारखानों में जो शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता मैथ्यू बाल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सो फाउंड्री का निर्माण किया। इस फाउंड्री से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी के अंत तक जेम्स वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। उसने वाटर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया और 1800 के बाद अधिक हल्के तथा मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से प्रयोग से अधिक सटीक मशीनें औजार के निर्माण से वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। My dear, what I am telling, try to understand. The James Watt, he played very important role in the steam engine area. James Watt converted the steam engine from being the mere pump into prime mover, capable of providing energy to power machine in factories, backed by the wealthy manufacturers Matthew Boulton. Watt created the Shaw Foundry in Birmingham in 1775. From this foundry, Watt's steam engines were produced in the steadily growing number by the end of the 18th century. Watt's steam engine was beginning to replace hydraulic power soon. After 1800, steam engine technology was further developed with the use of lighter strong metals. The manufacturers of more accurate machine tools and the spread of better scientific knowledge in 1840, British steam engine were generating more than 70% of all European horsepower. 1800 के बाद जब हल्की मेटल के प्रयोग से हल्के मशीन, मजबूत मशीन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, उसका एक्सपेंशन से अधिक प्रचार प्रसार हुआ, अधिक मशीनें बनी, तो ये हल्की मशीनें भाप के इंजन से चलने में अधिक सक्षम और सुगम थी और इससे स्टीम जो टेक्नोलॉजी थी वो और अधिक विकसित हुई। 1840 की स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में कुल आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक हॉर्स पावर का उत्पादन कर रहे थे। कहने का सेंस ये है कि अब जल्दी ही स्टीम इंजन ने पूरे यूरोप में अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव कर दी। 1814, in 1840, the British steam engine were generating more than 70% of all European horsepower. 70% horsepower किससे हो रही? स्टीम इंजन से ही प्राप्त हो रही है। That is the very important things, my dear. Canals and railway. The next topic is the canals and railway. I hope you have remember when I was discussed with you that the role of transportation in industrialization, where I told you that the canals, the water routes, that is the very important. That was the very important during industrialization. When railway introduced, it changed the whole scenario. The goods carrying one place to other place with the help of the railway, that is cheaper and that is easy mode for everyone. Even we can say that railway that was not cheaper than canals route, but railway in the whole month of the year it was running on, but canals it was unable to circulate the goods. It's unable to carrying the goods from one place to other place in every and each month of the year, because the European area, I meant to say the Europe continent that was situated in the cold region. During winter season, canals जो थी वो उसमें बर्फ जम जाती थी, उसमें नेविगेशन नहीं हो सकता था, नावें नहीं चल सकती थी, तो ऐसे समय में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरे मोड का सहारा लेना आवश्यक हो गया था।
और रेलवे साल के हर महीने में आसानी से चल सकती थी। इसलिए इन दोनों ने पूरी तरीके से ब्रिटेन को औद्योगिक नगर बनाने में, ब्रिटेन के औद्योगिकरण नीति में महत्वपूर्ण रोल निभाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। Let us come and try to understand the topic, the canals and railway. Canals were initially built to transport coal to cities. This was because the bulk and weight of coal made its transport by road much slower and more expensive than by barges of the canals. The demand for coal as industrial energy and for heating the lighting homes in cities grew constantly. The making of the first English canal, the Worsley Canal, 1761, by James Brindley, 1761 to 1772. James Brindley was the man first time who think and create the canal for the trading purpose. The making of the first English canal, the Worsley Canal, by the James Brindley, it was made, had no other purpose than to carry coal from the coal deposit to Worsley, near Manchester, to that city. After the canal was completed, the price of coal fell by half. इस वर्सली कैनाल के बन जाए, वर्सली कैनाल का प्रयोग क्यों किया गया? Why it was built? Because the transportation charges was very much. So first time the James Brindley think that if we make a canal which is connected with the Worsley to Manchester, Worsley to the city, I mean to Manchester, it would be better for us to provide the cheap mode of transportation, and it happened also. रेट अब कोयले की आधी हो गई। वही कहता है कि आरंभ में नहर जो बनी, प्रारंभ में जो नहरों आई वो कोयले को शहर तक ले जाने के लिए बनाई गई थी। इसका कारण ये था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में बहुत खर्च आती थी, जबकि उसे बजरों में भर के नहरों के रास्ते ले जाने के समय खर्च कम लगता था, समय भी कम लगता था। इंडस्ट्रियल एनर्जी के लिए शहरों में घर को गर्म करने में, ये सारा रोशनी के लिए कोयले का उपयोग होता था। इसलिए कोयले की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई। अब देखिए, वर्सली कैनाल जेम्स ब्रिंडली के द्वारा बनाई जा रही है और जेम्स वाट ने 1769 में भाप इंजन की खोज कर दी। वर्सली कैनाल 1761 में बनाई गई और स्टीम इंजन की खोज 1769 में हो रही है। दो चीज़ें याद रखिएगा, 1761 वर्सली कैनाल बनी और वर्सली कैनाल का प्रयोग केवल यही था, उसका बनाने का मेन उद्देश्य केवल यही था कि इसके जरिए वर्सली मैनचेस्टर के पास के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने से कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खदानों या जंगल के मूल्यों को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए शहरों में बाजार बन गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसीलिए तेजी से हुआ क्योंकि वहां लंदन, ब्रिस्टल, चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में वो स्थित था। बर्मिंघम इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि वो कई सारी नहरों का सेंटर पॉइंट था, जंक्शन था वो, इसलिए बर्मिंघम का विकास हुआ। बर्मिंघम से सटे हुए शहर लंदन थे, ब्रिस्टल थे, मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली का बीच का इलाका था ये। 1760 to 1790 के बीच नहरें बनाने में 25 नई परियोजनाएं शुरू हो गई। 1788 से 1796 तक की
जो तेजी से बनी नहर थी 1760 टू 1790 के बीच, स्पेशली 1788 टू 1796 को कैनाल मेनिया के नाम से पुकारते हैं। इस अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गई और इसके बाद अगले 60 ईयर्स में अनेक नहरें बनाई गई, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी, 4000 माइल से अधिक थी। माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द revolutionary area. During that time, they felt that the canal, that is the cheapest mode of transportation, so they started to build the canal and they connected to everyone, each area with the help of these canals. If canals connected the area, किससे? नदियों से या सीपोर्ट से, then the area and their sources and their minerals, they can easily carried out from one place to other place. The developing phase, वो एरिया क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। कहते हैं canals were usually built by big land owners to increase the value of the mines, quarries or forest on their land. The confluence of canal created marketing centers in New Town, the city of Birmingham, for example, owed its growth to its position at the heart of the canal system, connecting London, the Bristol Channel, and the Mersey and Humber River. From 1760 to 1790, 25 new canals building projects were begun. In the period known as the Canalomania, from 1788 to 1796, there were another 46 new projects stand over the next 60 years. More than 4,000 miles of the canals were built. 1760 से 1790 के बीच का टाइम पीरियड कैनालोमेनिया के नाम से कहलाते हैं, और 1788 टू 1796 का टाइम पीरियड में कम से कम 46 नए प्रोजेक्ट नहरों को बनाने के शुरू किए गए। 60 सालों के अंदर अंदर 4000 मील लंबी नहरें खुदवा दी गई और उससे ब्रिटेन का हर वो क्षेत्र कनेक्ट कर दिया गया जो इंटीरियर एरिया में था, जहाँ पे नदियाँ नहीं थी या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजीली पॉसिबल नहीं थी। द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टीफेंसन्स रॉकेट appeared in 1840. Railway emerged as a new means of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast to carry the passenger and goods. The combined two inventions, the iron track, which replaced the wooden track in the 1760s, and Hills along it by steam engine. कहता है अब रेलवे के आविष्कार के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की संपूर्ण प्रक्रिया दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। 1801 में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल कहते हैं। लेकिन पहले कहते हैं द फर्स्ट, पहला भाप इंजन, भाप से चलने वाला रेल इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज भी थी, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकती थी कम कीमत पे, और अधिक माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। इस साधन के साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिसने 1760 के डिकेड्स में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया। याद रखिएगा, पहले जो रेलवे की ट्रैक थी वो लकड़ियों से बनती थी, लेकिन 1760 के बाद लोहे ने रेलवे ट्रैक में लकड़ी को रिप्लेस कर दिया। लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई 1760 के डिकेड्स के बाद लोहे की पटरी पर खींचने जाने लगी। रेलवे का आविष्कार के साथ औद्योगिकरण का संपूर्ण प्रक्रिया दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। 1801 में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे।
ये इंजन ट्रकों को कार्नवाल में उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1840 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। महत्वपूर्ण काम हुआ। अब भारी से भारी चीजों को भी आसानी से पहाड़ के ऊपर तक पहुंचाया जा सकता था। 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये ब्लचर खींच के ले जा सकती थी, जिसको 1814 में स्टीफेंसन ने बनाया। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहर के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। 20 वर्षों के भीतर रेल 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? ब्लचर का आना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? 30 टन भार को 4 मील ऊपर पहाड़ी पर पहुंचाना प्रति घंटे की रफ्तार से, 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। और जो रेलवे लाइन बिछी 1825 में स्टॉकहोम और डार्लिंगटन के बीच 9 मील लंबा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन उस पर दौड़ी। ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाया, उसमें क्रांति लाने का काम किया। और फिर धीरे धीरे ब्रिटेन के अन्य शहर जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर को भी आपस में जोड़ दिया गया। 20 वर्ष के भीतर ही भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ना एक आम बात हो गई। 1830 के डिकेड्स में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई दी। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोत को भीड़ भाड़ से कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई। पाले और बाढ़ सूखे के कारण इसका इस्तेमाल कम समय में होता था। कहने का सेंस ये है कि अब नहरें कहीं न कहीं रेल के सामने, रेलवे मार्ग के सामने या रेल ट्रांसपोर्टेशन के सामने कमतर हो गई, क्योंकि रेलवे और केनाल्स की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। केनाल्स की लिमिटेशंस कुछ ज़्यादा थी। सूखा पड़ जाए तो पानी कम, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, नेविगेशन नहीं हो सकता। ठंडी पड़ जाए तो बर्फ जम जाती थी, आसानी से नेविगेशन एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं हो सकता था। बाढ़ आ जाती थी, ऐसे केसेस में भी ये नुकसानदायक हो सकता था। और नहरों के अधिक बन जाने से ट्रैफिक की समस्या भी इनके सामने आई। अब 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चौड़ों में लगभग 6000 मील लंबे बन गए। 1833 to 37 को लिटिल रेलवे मैनिया के नाम से जानते हैं, जब 1400 माइल लंबी रेल लाइन बनी। और 1844 to 47 में एक बड़े रेलवे कैनालोमेनिया के नाम के दौरान 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने को मंजूरी दी गई। इस संपूर्ण कार्य में लोहे और कोयले का भारी मात्रा में प्रयोग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को काम में लगाया गया और निर्माण तथा लोक कार्य उद्योग के क्रियाकलापों में तेजी लाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति प्रदान की। 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरी हिस्ट्री में कि किस तरीके से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है।